students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, our today's topic is operators and conditional statements. Things to learn: operators, operator precedence, conditional statements. Adi, Robo, we have learned the basic of Python programming in previous class. We want to learn more about Python programming. Robo. Okay Adi, we will learn about the types of operators and decision structures in Python programming. तो हम अपने previous class में Python programming के बारे में जान चुके हैं, इसके basic features के बारे में हम जान चुके हैं. इस chapter में हम इसके types of operators and decision structures के बारे में जानेंगे. Operators के बारे में पहले जान लेंगे. Operators are the special symbols that carry out arithmetic and logical computations. The values operated by the operators are called operands. For example, in the expression sum is equal to a plus b, sum a, b are operands and the plus sign and equal to signs are operators. The valid combination of both operands are and operators make an expression to return a computed result. Python provides a variety of operators which are as follows. तो ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन को कैरी आउट कर रहे होते हैं. ठीक है, इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं जो ऑपरेट की जाती हैं ऑपरेटर्स के द्वारा, उन्हें ऑपरेंड्स कहा जाता है. जैसे यहाँ पे अगर आप सम ले लो इज इक्वल टू 1 प्लस बी, तो आपका सम क्या है, ए एंड बी है, और ऑपरेंड्स यहाँ पे क्या है, प्लस एंड इक्वल टू का साइन है. तो जो इनका वैलिड कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का, वही एक एक्सप्रेशन बनाते हैं और फिर वो आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं. Arithmetic operators are used to perform numerical calculations in Python. Consider the following table for a detailed explanation of arithmetic operators. तो यहाँ पे हमें टेबल दी गई है. ठीक है, ये डिटेल्ड आपका वर्जन है आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का, तो इनको हम जान लेते हैं. ऑपरेशन, ऑपरेटर, यूसेज एंड एग्जाम्पल. एडिशन, जिसका साइन ये होता है. ठीक है, टू ऑब्टेन द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ 15 प्लस 2 इज 17. सब्ट्रैक्शन, इसका साइन ये होता है. ठीक है, माइनस का साइन होता है. टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ 40 माइनस 30 इज 10. मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस तरीके से साइन होता है. टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा, वैल्यू ऑफ 6.2 इंटू 6 इज 37.2. डिविजन, ठीक है, टू डिवाइड द नंबर्स एंड गिव एन आउटपुट इन द डेसिमल फॉर्म. वैल्यू ऑफ 7/2 इज 3.5. वैल्यू ऑफ माइनस 7/2 इज माइनस 3.5. वैल्यू ऑफ 10.0/3 इज 3.333. फ्लोर डिवीजन, ये 2 स्लैश में आता है आपका. टू डिवाइड द नंबर्स एंड गिव एन आउटपुट इन द इंटीजर फॉर्म बाय रिमूविंग डेसिमल पार्ट्स. वैल्यू ऑफ माइनस 5/2 is minus 2. Value of 5/2 is 2. Now remainder, percentage, to find the remainder when one value is divided by another. Value of 7% 2 is 1. Value of 14% 6 is 2. Value of 6% 10 is 6. Exponential, इस तरीके से इसका साइन होता है. to calculate the power of numbers, value of 3 exponentials 2 is 9. Now program to show the use of all arithmetic operator is as follows. Now assignment operators, अब ये क्या होते हैं, assignment operators are used to assign values to variables. तो ये variables को value assign करते हैं. For example, hash assign 5 to x, var x is equal to 5. Here is equal to is an assignment operator that assigns 5 to x. It assigns the value on its right side to the variable written on the left of it. Program to show the use of assignment operator. तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो 5 है वो असाइन किया गया x को. ठीक है, तो उसको ही x मान लिया गया. जहाँ जहाँ पे आप 5 डालेंगे वहाँ पे आप x की वैल्यू डालेंगे. Now here we have used the plus is equal to operator to assign the sum of a and b to a. Similarly, we can use any other assignments operators according to the need. String operators के बारे में जान लेते हैं. While working with the string values, Python allows only 2 types of operators on the string data types. You can either join 2 strings or replicate a string multiple times. For these 2 operations, use C plus and exponential operators on string respectively.
तो जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू में काम कर रहे होते हो तो पाइथन जो होता है ये आपको 2 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स अलाउ करता है अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में, ठीक है। आप चाहे तो 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो या फिर एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट कर सकते हो। सिंबल यहाँ पे दिया गया है, ऑपरेटर नेम दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। सिंबल है आपका प्लस, कॉन्टेटिनेशन यूज टू कॉन्टेटिनेट और ज्वाइन 2 स्ट्रिंग्स। इस तरह का कुछ साइन होता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, ये रेप्लिकेशन के काम आता है। यूज टू रेप्लिकेट अ स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स। नाउ प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया गया है, उसका आउटपुट भी आपको दिखाया गया है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर 2 वैल्यूज वेरिएबल्स एंड रिटर्न्स अ Boolean result, true or false. They are also referred to as the relational operators. The comparison operators are described in the following table. तो आप समझ ही गए होंगे कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स होते हैं ये 2 वैल्यूज़ या फिर वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये एक बुलियन रिजल्ट आपको देते हैं, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे टेबल में आपको दिखाए गए हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। सिंबल, ऑपरेटर नेम जान लेते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। इक्वल टू इज इक्वल इफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड्स इज इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर आपकी जो 2 वैल्यू हैं वो इक्वल होंगे तो आपका कंडीशन क्या होगा, ट्रू दिखाएगा। Exclamation mark is equal to not equal to. If the value of 2 operands is not equal then the condition becomes true. अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती तो आपके कंडीशन जो है वो ट्रू दिखाएगा। Less than equal to. If the first operand is less than or equal to second operand then the condition becomes true. ठीक है। Greater than equal to. If the first operand is greater than or equal to the second operand then the condition becomes true. Greater than, if the first operand is greater than second operand then the condition becomes true. Less than, if the first operand is less than the second operand then the condition becomes true. तो इस तरीके से आप इन सिंबल्स को अप्लाई करके इनको आप अपने प्रोग्राम में दिखा सकते हैं। Now subject integration, which operator has the highest precedence in Python? Which operator returns true in case both the conditional expressions evaluate to false? आपने ये टेबल तो पढ़ी ली होगी ऊपर, ठीक है। ऐसे टेबल को पढ़ते हुए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज एज फॉलो। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। Now logical Boolean operators. Logical operators in Python are and, or, and, not. For logical operators, following conditions are applied. Operator meaning description, example, and logical and if both the operands are non-zero then condition become true. A and B is true, or logical or if any of the 2 operands is non-zero then condition becomes true. A or B is true. Not logical not used to reserve the logical states of its operands. Not A or B is false. तो यहाँ पे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। 3 तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड जो आपका लॉजिकल एंड होता है ये आपके तब दिखाता है जब आपके ऑपरेंड्स जो होते हैं दोनों साइड में ये नॉन ज़ीरो होते हैं और आपकी जो कंडीशन होती है वो ट्रू हो जाती है। लॉजिकल और जो है ये आपकी कोई 2 ऑपरेंड्स जो नॉन ज़ीरो होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो भी क्या होते हैं, वो भी ज़ीरो ही दिखाते हैं। लॉजिकल नॉट जो है ये यूज़ किया जाता है किसी लॉजिकल स्टेट को रिजर्व करने के लिए ऑफ इट्स ऑपरेंड। Now operator precedence. An expression in Python may have more than one operator involved in it. When more than one operator is to be evaluated in an expression, the Python interpreter decides at runtime which operator should be evaluated first. This decision is based on the precedence and associativity of the operators. तो आपका जो एक्सप्रेशन होता है पाइथन में वो आपका ऑपरेटर से ज़्यादा उसमें मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जब यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको इवेलुएट किया जाता है एक एक्सप्रेशन में, तो आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो डिसाइड करता है एट रन टाइम कि किस ऑपरेटर को आपको पहले इवेलुएट करना है। ठीक है, ये जो डिसीजन होता है ये आपका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटी ऑफ द ऑपरेटर पे बेस्ड होता है। Precedence is the priority order of an operator according to which it is evaluated. Each operator has a precedence associated with it.
This precedence is used to determine the order of evaluation of an expression involving more than one operator. There are different levels of precedence from high to low. An operator belonging to a higher level is evaluated first. प्रेसिडेंस जो होता है ये आपको बताता है कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है, मतलब किस ऑपरेटर को आपको पहले रखना है, किससे आपको इवैल्यूएशन जो है वो शुरू करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है जो ऑपरेटर जो हायर लेवल से बिलोंग करता है उसको पहले इवैल्यूएट किया जाता है। एसोसिएटिविटी, if two operators have the same precedence priority, then they are either evaluated from left to right or from right to left based on their level. It is termed as associativity, which tells the direction of the execution of the operators left to right or right to left when the operators in an expression have the same precedence. तो यहाँ पर जब दो operators जिनकी same precedence होती है, मतलब priority में same ही होते हैं, तो यहाँ पे आपको तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किसको आप पहले इवैल्यूएट करोगे। तो यहाँ पे इवैल्यूएट जो है ये आपका या तो लेफ्ट टू राइट से शुरू होता है या फिर राइट टू लेफ्ट से शुरू होता है बेस्ड ऑन देयर लेवल, इसलिए इसको टर्म किया जाता है एज एसोसिएटिविटी। ये हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स को आपको स्टार्ट करना है। ऑपरेटर्स डिस्क्रिप्शन, पैरेंथेसिस, exponentiation plus unary minus unary, multiplication, division, floor division, modulus, remainder, binary addition and subtraction, relational operators, not or and or boolean logical operators। ठीक है, तो यहाँ पे operators और उसके description बताए गए हैं। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आर ऑपरेटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स। तो हायर ऑपरेटर्स जो आपके प्रेसिडेंस होते हैं उनको पहले रखा जाता है, लोअर प्रेसिडेंस को बाद में रखा जाता है। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ऑपरेटर्स विच हैव द सेम प्रेसिडेंस लाइक एक्सपोनेंशिएशन एंड स्लैश, देन विच एवर ऑपरेटर कम्स फर्स्ट इज एवेल्युएटेड फर्स्ट। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है आपके ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सेम प्रेसिडेंस के साथ आते हैं, इसमें आपका जो पहले आ जाता है उसको पहले इवैल्यूएट किया जाता है। एग्जाम्पल, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 13 + 4 × 6 - 9/3, solution is equal to 13 + 24 - 9/3 is equal to 13 + 24 - 3.0 is equal to 37 - 3.0 is equal to 34.0। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ब्रैकेट में आपके 13 + 4 लिखे हैं इंटू 6 - 9/3, सोल्यूशन इज इक्वल टू 17 × 6 - 9/3, 102 - 9/3, 102 - 3.0, 99.0। एक और एग्जाम्पल दिया है आपका, 13 + 4 इंटू ब्रैकेट 6 - 9/3, सोल्यूशन 13 + 4 इंटू -3/3, 13 + -12/3, 13 + 4.0 इज इक्वल टू 9.0। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन लैंग्वेजेस डिसाइड्स द डायरेक्शन, कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये हमें डायरेक्शन बताते हैं कि उनका जो प्रोग्राम है वो किस फ्लो में एग्जीक्यूट करेगा। द स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन आर नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अ कंडीशन इज यूज्ड टू डिसाइड which set of statements is to be executed between two alternative sets of statements. Therefore, these statements are also called selective statements or decision control statements. तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये एग्जीक्यूट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। कंडीशन जो होती हैं ये यूज़ की जाती हैं ताकि आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को डिसाइड कर सको कि किसको आपको पहले रखना है और किसको आपको ऑल्टरनेट सेट्स के बीच में रखना है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये सेलेक्टिव स्टेटमेंट या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहलाती हैं। Python provides various types of conditional statements as mentioned below. The if statement, the if else statement, the nested if statement, the if elif else ladder। तो ये सब आपकी वेरियस टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो पाइथन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनको डिटेल में जानेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं यू शुड नो। इन पाइथन द नॉन जीरो वैल्यू इज इंटरप्रेटेड एज ट्रू, नन और ज़ीरो आर इंटरप्रेटेड एज फॉल्स। तो आपके जो पाइथन में जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये ट्रू के तौर पे इंटरप्रेट की जाती हैं, जबकि जो नन और ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं ये फॉल्स के रूप में इंटरप्रेट की जाती हैं।
Python if statement. The if statement is the most simple decision making statement. It is used to decide whether a certain statement or block of statements will be executed or not. Syntax: if condition hash statements to execute if hash condition is true, hence the condition after evaluation will be either true or false. If the statement accepts boolean values, if the value is true, then it will execute the block of statements below it, otherwise not. As we know, Python uses indentation to identify a block, so the block under an if statement will be identified as shown in the below example. तो यहाँ पे जो आपकी इफ़ स्टेटमेंट होती है ये काफ़ी सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मानी जाती है। ये यूज़ की जाती है आप जब डिसाइड कर रहे होते हैं एक सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। ये आपका सिंटेक्स यहाँ पे इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है किसी भी इवैल्यूएशन के बाद वो या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से किसी एक रिजल्ट पे आकर के रुक जाती है। इफ़ जो आपकी स्टेटमेंट है ये एक्सेप्ट करती है बुलियन वैल्यूज़ को, ठीक है, अगर जो आपकी वैल्यू है वो ट्रू है तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है। एग्जांपल: इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, फॉल्स आया तो ये सीधा आपका स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ़ पे पहुँच जाएगा, अगर ट्रू आया तो ये बॉडी ऑफ इफ़ पे पहुँच जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ पाइथन इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है पाइथन इफ स्टेटमेंट का। एज द कंडीशन प्रेजेंट्स इन द इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो द ब्लॉक बिलो द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट. The if statement alone tells us that if a condition is true, it will execute a block of statements, and if the condition is false, it won't. But if we want to do something else, if the condition is false, we can use the else statement with if statement to execute a block of code when the if condition is false. Syntax of Python if else if condition hash executes this block if hash condition is true, else hash executes this block if hash condition is false. Text expression false, body of else, true, body of if, statements just below if. Text expression true, body of if, statement just below if, false, body of else. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं if else statement के बारे में. The if statement जो है ये alone बताता है किसी condition के बारे में कि वो true है और वो block of statement को execute करेगी. जो if statement है आपका condition है ये फॉल्स होती है अगर यहाँ पे आपके जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हो. लेकिन जो आपका इफ़ है ये आपको कुछ एल्स के साथ भी कंटिन्यू करने के लिए कहता है. इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर ट्रू आ गया तो वहाँ पे कंडीशन ख़त्म हो गई, लेकिन अगर फॉल्स आ गया तो यहाँ पे आप एल्स स्टेटमेंट जो है ये अप्लाई करते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है. The block of code following the else statement is executed as the condition present in the if statement is false either after calling the statement which is not in the block without spaces. Nested if statement in Python. A nested if is an if statement that is the target of another if statement. Nested if statements mean an if statement inside another if statement. Yes, Python allows us to nest if statement within if statement, i.e. we can place an if statement inside the another if statement. Syntax: if condition 1 has executes when condition 1 is true. If condition 2 hash executes when condition 2 is true. Hash if block is and here, hash if block is and here. Text expression true. Nested text expression false. False, body of else, true, body of nested if, body of nested else, statement just below if. तो नेस्टेड आपकी जो स्टेटमेंट होती है ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही एक और इफ़ स्टेटमेंट को आप क्या करते हो, नेस्ट करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स इसका एग्जांपल दिया गया है, इस तरीके से आप इसे अप्लाई करते हो. पाइथन इफ एलिफ एल्स लैडर. Here a user can decide among multiple options. The if statements are executed from the top down as soon as one of the conditions controlling the if is true. The statement associated with that if it is executed and the rest of the ladder is bypassed. If none of the condition is true, then the final else statement will be executed. Syntax: if condition.
स्टेटमेंट्स इफ एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 येस स्टेटमेंट 1, नो टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 येस स्टेटमेंट 2, नो टेक्स्ट एक्सप्रेशन 3 येस स्टेटमेंट 3, बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एल्स इफ। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं पाइथन में कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। यूज़र जो होते हैं ये आपके मल्टीपल ऑप्शंस को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आपकी जो इफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज सुन एज जो आपका कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल की जाती है अगर वो ट्रू में होती है, और जो स्टेटमेंट्स होती हैं एसोसिएटेड विद वो एग्जीक्यूट की जाती हैं फर्दर। तो यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप रूल यहाँ पे लगाते हो और इस तरीके से फ्लो चार्ट ऑफ पाइथन यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। Critical thinking when we have an if-else statement, what is the need of if-else statement? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास if-else statement ऑलरेडी है तो if-else statement का क्या यूज़ है, उसकी क्या नीड है, ये आपको बताना है। Conceptual learning input a number and display if it is prime or not. Now here nothing is displayed when you enter a number which is not divisible by 2. Write a program in Python to enter two numbers and check whether numbers are equal, greater than and smaller than to each other. Write a program to display the name of the day according to the number given by the user. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी चीज़ आपको डिस्प्ले नहीं करेगी अगर आपका जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम आपको दिए गए हैं, इस तरीके से प्रोग्राम को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। Now tricky terms, operators, special symbols that carry out arithmetic and logical computation. Operator precedence defines the order in which operators are evaluated. Associativity, it tells the direction of the execution of the operators. Conditional statement decides the direction of the flow of program execution. These statements are executed depending upon a condition. तो बेसिकली हमने इसमें सीखा कि पाइथन में कैसे आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो इवैल्यूएट किए जाते हैं, ठीक है। कैसे आपके जो ऑपरेटर्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है एक फ्लो में, एक सीक्वेंस में। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरली।